Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, this is the first lecture in the course of English language class 9th and 10th. Today we are going to discuss our new topic, and that is past indefinite tense. Unit number 8, the simple past tense. Meaning and use, form structure and exercises. Meaning and uses. Meaning and use. When do we use the simple past tense? हम simple past tense फेल माजी मुतलिक कब इस्तेमाल करते हैं? We use the simple past tense past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए फेल माजी कहलाता है. What are the some common time expression used with the past tense? Yesterday, last month, last year, last week, ago, in 1980. For example, I saw Maria yesterday. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. They got married 2 years ago. These actions are over, finished. How do we form the simple past tense? English has two types of verbs in the past tense. Number one is regular verbs and the second one is irregular verbs. Look at the following list of the past tense verbs. Which verbs are regular and which are irregular? Taught, walked, studied, gave, became, cried, lived and did. Irregular, taught is irregular, walked is regular, studied is irregular, gave is study is regular, gave is irregular, became is irregular, cried regular, lived regular and did irregular. Regular verbs are verbs that end with ed. Simple form and past tense. Walk, study, cry, live. Walk, ed, walked. Study, ed, studied. Cry, id, cried. Live, id, lived. Irregular verbs are verbs that don't end with ed. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. examples. For example, simple form and past tense. Become, became. Give, gave. Drive, drove. Forget, forgot. Other irregular verbs have a different kind of change. Examples: simple past, teach, taught, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. Celia bought a new computer last weekend.
and some irregular verbs don't change at all. For example, simple and past. Hit, hit, it will not change. Put, put. Set, set. The children set the table every Sunday. The children set the table last night. For regular verbs, simply use the ed form of verb in a positive sentence. When I was child, I dashed the piano. I played the piano. Donna dashed Paris. Donna visited Paris. Played, visited. Be careful with spelling changes. For irregular verbs, use the correct past tense form in positive sentences. We use the same for with different subjects. Unfortunately, these forms must be memorized. Last week, I dashed your letter. The students dash an English exam have. They dash a great job. Last week, I sent. The students had. They did a great job. For negative sentences, use did not or didn't with verb based form infinitive. I went to work yesterday. Here verb based form means second form of verb. Go, went and gone. So went is the second form. I did not go to work yesterday. Exception verb be. The verb be is special. Never use did not or didn't with the verb be. Instead, just use was or were with not. For yes, no question use did plus subject plus verb based form infinitive. Did you go to work yesterday? Did you come yesterday? Put the verbs between brackets into the correct form simple past. Last year I spent dash my holiday in Ireland. It'd be a dash great. I traveled dash around the city by car with true friends and we visit dash lots of interesting places. In the evening we usually go dash to a cafe. We be dash very lucky with the weather. It not slash rain dash a lot. We see dash some beautiful rainbows. I have dash an amazing holiday. Spent, was, traveled, visited, went, were, didn't, rain or did not rain, saw. I had an amazing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, आज हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलिक. पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलिक वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए फेल माजी कहलाता है. और इसकी पहचान क्या है? उर्दू की फिक्रे के आखिर में ता है, ता था, ती थे, ते थे या फिर या था, ये थे, ये थी, ये थी और अलिफ वगैरह आता है. ये एक ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गुज़श्ता ज़माने में हुआ हो. उर्दू में इसकी निशानी ये है कि जुमले के आखिर में था, थी, ये, अलिफ, मीम ये बढ़िया आता है. Some important rules. There is no helping verb in simple sentences. इसके सिंपल सादा जुमले में कोई भी helping verb यानी इमदादी फेल नहीं है. And we use second form of verb.
और हम इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर गो, वेंट, गॉन, तो वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, और हम इमदादी फेल नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल सेंटेंसेस में आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, मनफी होगा, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ लगानी है। वी यूज डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज करते हैं। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डिड इन द बिगिनिंग एंड ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन मार्क एट द एंड इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के अंदर इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो शुरू में लगाते हैं और उसके आखिर में हम उसका क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव वी यूज डिड नॉट बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका जुमला जो है वो मनफी सवालिया है तो हम डिड नॉट को बिफोर से पहले भी लगा सकते हैं और बिफोर के बाद भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर जुमला है, क्या इसने तुम्हें चिट्ठी ना लिखी? डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू यू? क्या इसने तुम्हें चिट्ठी ना लिखी? डिड नॉट ही राइट अ लेटर टू यू? तो हमने मनफी सवालिया जुमलों में हम जो सब्जेक्ट जो हैं वो नॉट जो है डिड नॉट वो सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। इफ एनी पास्ट टाइम इज गिवन देन वी शैल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंस। ठीक है, अगर इस टेंस के अंदर जो गुज़िश्ता ज़माने के बारे में बताया हो तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से के मुताबिक ही इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कल घर आया था, ही केम होम येस्टरडे, वो परसों मुझे मिला, ही मेट मी द डे बिफोर येस्टरडे। In certain cases, we put stress on something in a sentence. In this case, we use did after the subject if the sentence is related to the past definite. उसने कहा कुछ केसेस के अंदर हम किसी जुमलों के ऊपर जो है वो दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम did को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं अगर वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, वो जरूर यहाँ आया था, he did come here yesterday, इसने जरूर मेरी किताब चुराई थी, he did steal my book। जरूर के ऊपर उसने यहाँ पे स्ट्रेस दी है और इसने जरूर मेरी किताब चुराई है और इसने इसके ऊपर भी स्ट्रेस दी है। Habitual action in past tense. In past tense we can refer the continuous work done as a habitual action. In positive sentences we use used to after the subject with the first form of verb. हम past tense के अंदर habitual action को भी देखते हैं। जो काम हम लगातार तौर पर करते हैं वो हमारी आदत बन चुकी है, उसको हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं और जो कि मस्बत जुमलों में इस्तेमाल होता है और हम उसमें यूज टू इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। मिसाल के तौर पर वी यूज टू टेक बाथ डेली, हम रोज नहाया करते थे। तो यहाँ पर रोज नहाया करना से मुराद है कि ये आपकी डेली की रूटीन है। हम दरिया पर सैर को जाया करते थे, वी यूज टू गो टू द रिवर फॉर अ वॉक, हम रोज दरिया को सैर पे जाया करते थे, मतलब कि ये आपकी एक आदत बनी हुई है। वी शैल नॉट यूज टू इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हम मनफी जुमले में और सवालिया जुमलों में जो है यूज टू यूज नहीं कर सकते। समटाइम वी राइट डिडंट इंस्टेड ऑफ डिड नॉट, हम इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूले सिंपल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मनफी सवालिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेबल नंबर 5, इसको आपने कंसेप्चुअली देखना है। यहाँ पे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, सारा जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। आई वेंट टू बाजार सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट गो टू बाजार फर्स्ट फॉर्म, डिड आई गो टू बाजार फर्स्ट फॉर्म। वी वेंट टू बाजार, वी डिड नॉट गो टू बाजार, डिड वी गो टू बाजार, यू वेंट टू बाजार, यू डिड नॉट गो टू बाजार, डिड यू गो टू बाजार, ही वेंट टू बाजार, ही डिड नॉट गो टू बाजार, डिड ही गो टू बाजार, शी वेंट टू बाजार, शी डिड नॉट गो टू बाजार, डिड शी गो टू बाजार, it went to bazaar, it did not go to bazaar, did it go to bazaar। where this tense is used,
ये फेल कहाँ इस्तेमाल होता है? दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज वर्क और एक्टिविटीज व्हिच हैव बीन अकर्ड इन आइसोलेशन इन द पास्ट, जो आपकी तन्हाई में वाकया पजीर हुए हों। मिसाल के तौर पर ही टोल्ड मी, इसने मुझे बताया, तो जिसने भी आपको बताया उसने आपको अकेले में बताया। वी गॉट लेट, हमें देर हो गई। दे इन्वाइटेड एवरीबॉडी, उन्होंने सबको दावत दी। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज वर्क एंड एक्टिविटीज हुज टाइम ऑफ अकरेंस हैड बीन गॉन, जो वाकया हो चुकी थी, उनका वक्त गुजर चुका है। इसने 2 साल इस दफ्तर में काम किया। ही वर्क इन दैट ऑफिस फॉर 2 years, वो काफी अरसे कराची में रहा। ही लिव्ड इन कराची फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने 5 साल इस स्कूल में पढ़ाया। आई स्टडीड इन दैट स्कूल फॉर 5 years। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एनी पास्ट हैबिट, वो आदत जो आपकी माजी में थी, वो हमेशा देर से आता है। ही ऑलवेज केम लेट, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आई नेवर टोल्ड अ लाई, शी ऑलवेज हेल्प मी, उसने हमेशा मेरी मदद की। So dear students, if you have any kind of question and confusion, you can ask from me. So what is your assignment? You have to see the both detailed lecture of past indefinite tense with concept. You have to see it, you have to read it conceptually, and after reading that you have to do the particular exercises which have been assigned to you in the summer vacation homework. So I will catch you in my upcoming new lecture. Till then, take care of yourself and your loved ones, and do not waste your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.